Good evening, dear student. Today we are starting next chapter, chapter number 3, banking. Sorry, 6, chapter number 6, banking. So first we will understand the meaning of banking. Meaning. Banking means accepting public deposit, accepting public deposit and issuing loans to public for consumption and investment purpose. Yes. So what is banking? Banking means accepting public deposit by financial institution. In our India, all the accreditation or the permission is given by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the apex bank who will give permission to financial institutions, and banking is the work in which loans and advances are provided by institutions and public deposit are accepted. Here one thing is that is notable, that both the things should be happen for calling a bank or for determining a bank. किसी को भी आप बैंक कहेंगे तो उसके लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है कि एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट और प्रोवाइडिंग लोन्स टू पब्लिक. If only one thing is provided by any institutions, then it will not be bank. We can understand it through some of the example. First example I am taking bank. Nearby we have seen many commercial bank. These are provide two things basically. First is loan and second is accepting public deposit. These are the two basic operations which is done by financial institutions, which are bank. If out of these two only one task is performed by any bank, by any institution, then it will not be bank. One example we can take about NBFC. What is NBFC? Full name of NBFC is non-banking financial companies. Non-banking financial companies. Non-banking financial companies, it means these are not doing any banking activity. It means कि ये बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करती है, ये नॉन बैंकिंग एक्टिविटी करती है. और नॉन बैंकिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? नॉन बैंकिंग एक्टिविटी में इनका मेन काम एक ही होता है, द मेन टास्क ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोवाइड लोन. सो दिस इज नॉन बैंकिंग एक्टिविटी. लोन प्रोवाइड करना बैंकिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता. दिस इज नॉन बैंकिंग एक्टिविटी. एंड इफ any institutions which is accepting public deposit and providing loan also, we can say it bank. So first, when we are reading the banking chapter, we should understand what is banking. Now in detail we will read what is commercial bank. Yes. So please write meaning of commercial bank. Meaning of commercial bank. Already I have told you what is commercial bank. It is that financial institution which accept
public deposit from the people and gives loan for the purpose of consumption and investment. The two words are used here, consumption and investment. Consumption means sometime people will take loan for fulfilling their day-to-day activity. For example, if they are having problem in their medical expenditure, then they can take personal loan. So they will immediate consume and use it. Investment. Suppose that you are taking loan for your house construction. तो बताइए कंजम्पशन होगा या इन्वेस्टमेंट? हाउस कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट. वाई? बिकॉज इट विल क्रिएट एसेट्स. ये बिल्डिंग क्रिएट करेगा. ये वो पैसा नहीं है कि आपने तुरंत ले लिया और खर्च कर दिया. घर में कोई बीमार हुआ, बीमारी में लगा दिया, वो कंजम्पशन हो गया. बट आपने इसको यूज़ किया और इससे क्या बना लिया? बिल्डिंग बना लिया. तो वो क्या हो जाएगा? वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. So there may be many purpose for it, for using it for our own residence, or we can use it for rent. We can let it out. हम इसे रेंट पे भी दे सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं. नो डाउट यूज़ भी करेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट ही है, बिकॉज यदि आप घर नहीं बनाएंगे तो दूसरे का रेंट पे लेंगे तो पैसा लगेगा. सम ऑफ द एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इन शॉर्ट. LIC, Life Insurance Corporation of India. Life Insurance Corporation of India. So dear student, its main work is to provide insurance. इसका मेन काम क्या है? To provide insurance. So whenever you will go to insurance office, you will find that some of the persons are depositing money on cash counter, and you will think that they are saving money. No, they are depositing their premium. वो अपना प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं. तो आप इसको क्या नहीं कह सकते? आप इसको बैंक नहीं कह सकते, बिकॉज ये एक एक्टिविटी करता है. ये लोन भी देता है. सॉरी, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, LIC is also providing loans, because these are having a big source of money. Insurance is contributory things where all persons are contributing money, and payment is only be given when the person is dying or the particular majority. So a lot of amount is available for these institutions for providing loans. So it is providing loan, but not accepting public deposit. ये लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि सेविंग पड़ी है तो आप जाके उसमें डिपॉजिट करवा दोगे, वो उस पर इंटरेस्ट दे देंगे. नो, यू कांट ओपन एनी अकाउंट इन LIC. LIC में आप कोई भी आप सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. तो ये लोन तो प्रोवाइड करवाता है, बट ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये बैंक नहीं होगा. अनदर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस. यस, दिस इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पोस्ट ऑफिस जितने भी हैं इंडिया के, दीज आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी. प्योर गवर्नमेंट है. एंड इन आवर सराउंडिंग्स यू कैन सी दैट व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस. In earlier time, to accepting the mails and sending to the needy person. मेल को रिसीव करना और फिर जहाँ पे उसको सेंड करना है वहाँ पे सेंड करना. डिलीवरिंग मेल, delivering mails and accepting public deposit.
Nearby you at this time you can see so many banks, but if we take the example of rural area, then still you can see that I think less banks are there and somewhere there is no bank. या तो आपको बैंक कम मिलेंगे और कुछ विलेज तो ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बैंक है ही नहीं. सारे ग्राम पंचायत पे आपको नियर बाई जयपुर जैसे कोई विलेज है तो वहाँ पर आपको बैंक मिल जाएगा, बट आप यदि और ऐसी सिटी में पंचायत लेवल पे जाएंगे वहाँ पर आपको कोई बैंक नहीं मिलेगा. सो फ्रॉम अर्लियर टाइम हाउ द पीपल वर डिपॉजिटिंग देयर मनी, दे वर डिपॉजिटिंग देयर मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की बहुत टाइम्स पहले से रूरल एरिया पे पोस्ट ऑफिस थे, वो मेल भी एक्सेप्ट करते थे और पब्लिक डिपॉजिट भी भेजते थे. एंड वन ट्रेडिशनल एग्जांपल आई थिंक यू हैव लिसन इट, मनी ऑर्डर नाम सुना आपने कभी? मनी ऑर्डर, यस, थ्रू पोस्ट ऑफिस दिस फैसिलिटी इज यूज्ड. सो दिस इज द पोस्ट ऑफिस, इट इज accepting public deposit, but it is not providing any loan. It will not provide any loan. Not provide any loan. पोस्ट ऑफिस कोई लोन नहीं देता है, इसलिए ये भी बैंक नहीं होगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर अ बैंक वी शुड हैव टू एक्टिविटी, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड सेकेंड इज प्रोवाइडिंग लोन्स. Next, money creation by banking system. Money creation or credit creation by banking system. Money creation or credit creation by banks. So I want to ask a question from you that from which source bank is providing money. बैंक किस सोर्स से पैसा देता है? Then generally you will say that the deposit we and you are depositing into bank. कि सर जो पैसा आप और हम बैंक में जमा कराते हैं उसमें से बैंक लोन देता है. So it is absolutely right. This is basic source of providing loans. If there is any shortage due to any calamities or problems, then bank can take funds from RBI. But basic source of loans and other deposits is public deposit. तो बैंक जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो पब्लिक डिपॉजिट से प्रोवाइड करवाता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड टुडे हाउ बैंक इज क्रिएटिंग क्रेडिट. सपोज दैट वी आर हैविंग ओनली वन बैंक. एक एज्यूम करते हैं कि एक ही बैंक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक ही बैंक है. एंड डियर स्टूडेंट, 5 persons आर कमिंग ईयर एंड दे आर डिपॉजिटिंग 100 rupees. One question will come, is it possible that entire amount can be given by bank in form of loan? पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या बैंक सारे का मतलब कितने रुपए हो गए? 500. क्या बैंक पूरे 500 को पब्लिक को लोन के रूप में दे सकता है? तो आपका आंसर होगा नो. एंड वाई? बिकॉज सम अमाउंट इज केप्ट इन फॉर्म ऑफ रिजर्व. क्यों नहीं दे सकता पूरा लोन? सम अमाउंट of public deposit, some amount of public deposit is kept by bank or RBI in form of reserve. Instruction issued by
Reserve Bank of India. Reserve Bank of India will decide that how much amount is kept in form of reserve. It is determined by Reserve Bank of India, and these are the type of reserve, generally CRR and SLR. In detail we will read further. So suppose that CRR is 10%. So 500 का 10% हो जाएगा 50, लेस कर दो 50. So bank can give only 450 rupees as a loan. Now we will understand how loan credit will be created. Suppose that out of this 500 to 3% loan is given and these are PQR. तीन वो पर्सन है जिनको लोन दिया गया है 100, 100, 100. Can you tell or can you say that any objection will arise from ABCDE that why these are given loan? क्या ABCD से कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि हमारे पैसे आपने लोन के रूप में दे दिए PQR को? I want to explain it to you in my language. मैं मेरी लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि मान लो ये बोलता है कि आपने तो मेरे 100 रुपीज़ पी को दे दिए. मान लीजिए मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मैं क्या बोलूँगा कि आप देखिए आपकी पासबुक में कितने डिपॉजिट हैं कि 100. आपको 100 रुपये चाहिए कि नो? आपको जब चाहिए जब आपको मिल जाएंगे. तो क्या ए को कोई ऑब्जेक्शन होगा? ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. तो ए बोल ही नहीं सकता. ये थोड़ी कहेंगे कि अरे सर मैंने आपको पैसे दिए थे बैंक क्लर्क को, आपने तो एक्स को दे दिए, क्यू को दे दिए, वाई को दे दिए, के को दे दिए. नो, बैंक विल से यू दैट यू कैन काउंट योर डिपॉजिट, you can see your passbook. In your account you are having 100 rupees. Whenever you need you can withdraw it. So bank will hold this money. बैंक इस मनी को होल्ड करती है अपने पास और फिर उसमें से बैंक क्या देती है? लोन देती है. One question will again will come that if these person will come for withdrawing their money, कि सर क्या यदि ये ABCD अपना पैसा वापस लेने आ जाए तो बैंक क्या करेगी? बैंक ने तो लोन दे दिया PQR को. So dear student, if bank is not having fund, then bank will take immediate fund instant from other bank. We can say transaction from commercial bank through bankers or by banker drafts. Instant bank तुरंत लोन ले सकती है. बिल्कुल ABCD को तो वो तुरंत पैसा दे देगी. But here we will have one assumption in economics and I am writing in this box. इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशंस है बैंकिंग सिस्टम में कि क्रेडिट क्रिएशन होता है. द क्रेडिट विच इज क्रिएटेड, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट? दैट इट इज द अजम्पशन दैट, क्या अजम्पशन है? दैट ऑल डिपॉजिटर्स विल नॉट कम at the same time to withdraw their money. बैंकिंग सिस्टम ये मानता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा नहीं लेने आएंगे. आप बताइए क्या आते हैं एक साथ? क्या सारे एक साथ बैंक चले जाएं? डियर स्टूडेंट, आई थिंक मैं समझता हूँ कोविड में भी नहीं गए सारे. तो क्या दुनिया में सारे लोग गरीब थे कि जिनके पास कुछ नहीं था? मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बता देता हूँ जिन्होंने अपने, कईयों के पास तो खुद के पास इतना पैसा था कि 1-2 महीने तो उन्होंने ऐसे ही चलाया है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दे हैव स्टॉप्ड देयर ऑल वर्किंग. उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर दी और यूँ मान के चलिए गवर्नमेंट उनको बैठे को तनख्वाह दी है. कितना सैलरी आ रही थी उनके अकाउंट में? तो उनका अकाउंट तो प्लस की बजाय क्या हो, माइनस की बजाय क्या हुआ है? प्लस हुआ है. बट आई एम नॉट कनेक्ट इट विद ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. इफ वी विल कंपेयर टू द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल आर नॉट पुअर. मैनी आर बिजनेसमैन, सर्विसमैन, प्रोफेशनल्स. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. सपोज दैट यू कैन deposit 1000 rupees today and you can withdraw tomorrow or the next day, but everyone will not do this work. Another thing,
Dear student, we are not having only A, B, C, D, 5 customer in banking system. क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में 5 ही कस्टमर है? क्या छठा कस्टमर ही नहीं आएगा? ये भी कभी नहीं हो सकता. Every day we think or we observe that many depositors are coming and they are opening new account. आज आप देखिए बैंकों में डेली नए लोग आते हैं और नए सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं. डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड न्यू कस्टमर्स आर increasing, new banks are established by government of India and many private banks are there. So this is the principal assumptions that all depositors will not come to withdraw their money back at a particular or the same time. So this is the system of creating credit, and now this system we will understand through a table. So credit creation by banking system. Credit creation by banking system. We will draw 4 columns. Column first is round. Second, deposits. Third, loans. And fourth, cash reserve ratio. Cash reserves. And dear students, suppose that the rate of cash reserve is CRR is 10%. Suppose in round first deposit is 10,000. So already we have discussed that entire 10,000 cannot be given in form of loan. पूरे 10,000 को बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकती, तो हमें 10% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ कंपल्सन फॉर बैंक टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड CRR इज 10%. तो 1000 का 10% हो जाएगा 1000. सो लोन अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक इज 9000. राउंड सेकंड में सपोज कीजिए कि ये 9000 एक साल के लिए दिए गए हैं, तो सेकंड राउंड में 9000 डिपॉजिट जिसने भी लोन लिया था वो वापस डिपॉजिट करने आएगा. तो मोर डिपॉजिट विल क्रिएट इन सेकंड राउंड. द बैंक डिपॉजिट विल बी 9000. 10% we will keep in form of reserve, that is 900. So in second time loan will be given 8100. Round third deposit will be 8100. ये डिपॉजिट होते जाएंगे वापस. जो पैसा बैंक ने लोन दिया वो वापस आता जाएगा. लोन विल बी 10% of 8100, 810. Remaining amount 8100, 7290. Yes, 7290. In this way this circulation will continue. अब ये कितने राउंड तक कंटिन्यू होगा, इसके लिए आप ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आपको लिखना नहीं है. राउंड जैसे जितना CRR कम होगा उतने राउंड ज़्यादा होंगे, तो आप इसमें टोटल लिख देंगे. फिर टोटल देखें यहाँ पे ये बैंक का डिपॉजिट कितना था 10,000, तो ये देखो 10,000 क्या क्रिएट हो जाएगा, रिज़र्व क्रिएट हो जाएगा. 10,000 का क्या क्रिएट हो जाएगा, रिज़र्व क्रिएट हो जाएगा. एंड फॉर दिस वी विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर कैश रिजर्व रेशियो इज 10%. सो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया नहीं है फिर भी लिख लीजिए. मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/CRR, 1/10%. तो ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स. तो बैंक का डिपॉजिट कितना होगा, 10 टाइम्स. तो 10,000 का 10 टाइम कितना हो जाएगा, 1 लाख. So if bank want to maintain 10,000 reserve,
यदि बैंक 10,000 का रिजर्व मेंटेन करना चाहती है तो बैंक को अपने डिपॉजिट कहाँ तक ले जाने होंगे? 1 लाख तक। जब बैंक के डिपॉजिट 1 लाख हो जाएंगे और बैंक के लोन कितने हो जाएंगे? 90,000, तब बैंक के पास 10,000 पैसा हो जाएगा। इसका मतलब है जितना पैसा डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है ना, उतना का उतना पैसा बैंक के पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये एक्टिविटी आप अपनी रूटीन लाइफ में भी शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग करते हैं। हु आर प्रोवाइडिंग मनी, आई वांट टू से ये लेंडर्स, जो पैसा उधार देते हैं ना डियर स्टूडेंट, वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। वो सबको लोन देते जाएंगे और फिर उस लोन का जो डिपॉजिट आएगा वो फिर किसी और को देते जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो। और धीरे धीरे वो छोटा मोटा लाइसेंस भी ले लेते हैं, कई लाइसेंस लेके भी काम करते हैं। फाइनेंस का लाइसेंस बहुत कंपनियां मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके पास भी यदि 1-2 करोड़ रुपए या 50 लाख भी हो तो आप एक छोटी कंपनी लाइसेंस लोन देने वाली ओपन कर सकते हो। आपके लोन का अमाउंट ज़रूर छोटा होगा, रिस्क आपकी खुद की होगी, इसमें कुछ नहीं है। बैंक लाइसेंस देता है, रिस्क आपकी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप डिपॉजिट करोगे, ओनली यू कैन प्रोवाइड लोन दे सकते हैं आप। तो आप देखते होंगे ऑनलाइन कितनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी चाहे तो छोटी कंपनी भी है, बड़े लोन देने वाले भी हैं तो छोटे छोटे लोन देने वाले भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर लिख दो या क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका फार्मूला होता है 1/CRR। अभी हमने किया था, जैसे CRR 10% है तो ये हो जाएगा 1/10%। तो ये 1/10% का मतलब 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 और ये रिवर्ट हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 10 टाइम्स। What is the meaning of this 10 times? It means if CRR is 10%, then money will be created up to 10 times. Deposit will be created up to 10 times. जो बैंक के डिपॉजिट है वो कितने टाइम होंगे? 10 टाइम होंगे। 10 टाइम तक जब ले जाएंगे तब उस रिजर्व के बराबर जो मनी है वो क्या होगा? क्रिएट होगा। Some terminology I want to explain with the topic of process of money creation by banking system. Process of money creation by banking system. प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। आपको थ्योरी लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जो पैसा बैंक लोगों से लेती है तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है ना। तो देखो इसका नाम एक और होता है, क्योंकि MCQs में, फिलअप्स में कहीं भी आ सकता है। वी कैन से इट प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो पब्लिक अपना पैसा बैंक को दे देती है वो पैसा क्या हो गया? बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट। और यदि यही पैसा पब्लिक के पास रहेगा तो ये हो जाएगा हाई पावर्ड मनी। पब्लिक के पास रहेगा तो ये हाई पावर्ड मनी रहेगा,
और ये पैसा बैंक के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट, मेन डिपॉजिट। इफ कॉमर्शियल बैंक वांट टू टेक लोन फ्रॉम पब्लिक आरबीआई, वी कैन हैव अ लिमिट। आरबीआई से जो पैसा लेगी उसकी क्या हो सकती है, लिमिट हो सकती है। बट क्या पब्लिक डिपॉजिट की लिमिट है? इसका कोई लिमिट नहीं है। जितने जो ज़्यादा जो लोग एफर्ट्स करेंगे उतने ही पब्लिक डिपॉजिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इफ़ पब्लिक इज़ डूइंग मोर एफर्ट्स, इन्फ्लेशन इज़ हायर, एवरीवेयर वी कैन सी गुड एक्टिविटीज़ आर देयर, गुड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ आर देयर, ऑब्वियसली डिपॉजिट विल इंक्रीज। तो दिस इज द मेन डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। राइट सेकेंड, बैंक लैंड money many times more than THAN, than their cash reserve. Yes. So in our previous example we can see that बैंक का रिजर्व कितना था, 10%। तो मान लो सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ बैंक के पास है, तो बैंक रिजर्व कितना रखेगा, 10। तो लोन कितना देगा, 90। तो बताइए रिजर्व का कितना टाइम हो गया, 9 टाइम हो गया, नहीं आगे हो गया। सो मैनी टाइम्स मोर रिजर्व लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। So this is the meaning of this sentence. Bank lend money many times more than their cash reserve. Third, yes, third and most important information related to credit creation, bank will not provide loan in form of cash, but it provide credit entry to borrowers। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने बोला था कि कभी भी बैंक लोन के रूप में हार्ड कैश नहीं देगा आपको। वो क्या करेगा, वो क्रेडिट एंट्री करेगा कि यस कितना लोन चाहिए, कि 200 रुपये, 200 रुपये आपके अकाउंट में चले गए, बैंक के पास थे ही 200 रुपये और 200 ही उसको दे दिए, क्रेडिट एंट्री कर दी। तो ये आप ध्यान रखिए कि बैंक कभी भी है ना कैश अमाउंट नहीं देता है। कैश देगा तो फिर कैश की कमी हो जाएगी। एट दिस टाइम वी कैन सी दैट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर देयर और इनसे ट्रांजेक्शन बढ़े हैं। जितना बैंक के पास कैश नहीं है ट्रांजेक्शन उससे भी क्या है, ज़्यादा है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर कैश से ज़्यादा क्रेडिट एंट्री है, तो सारे लोग यदि एक साथ निकालने पहुंच गए तो कैश कहाँ से देंगे? ऐसा होता भी नहीं है कि सारे लोग एक साथ कैश लेने जाते ही नहीं है। जितना कैश होगा उससे ज़्यादा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। दिस इज नॉन एज, बोरोवर के अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। दिस इज नॉन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। द पब्लिक इज डिपॉजिटिंग मनी, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, और ये हो जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट। फोर्थ पॉइंट,
borrowers can issue checks. Borrowers can issue checks to their creditors for payment. अब देखिए सर्कुलेशन बढ़ेगा या नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया, 1,00,000 रुपए का लोन लिया और आप दोनों मेरे में पैसा मांगते हो और मैंने आपको चेक दे दिया। अब वो चेक है 1 महीने बाद का चेक है कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा लेकिन 1 मंथ बाद आपको पैसा मिलेगा। मान लो कर लिया अपन ने डिसाइड। अब बताइए मनी सर्कुलेशन बढ़ा या नहीं। 1 महीने तक आप चुप रहेंगे और आप मुझ पे विश्वास भी करेंगे कि चेक दे दिया, आपका की टेंशन है। भाई आपको मैंने चेक दे दिया, आपका की टेंशन है। नहीं चेक का पेमेंट आएगा तो कोर्ट में केस कर देंगे। बट आप देखिए कि 1 मंथ के लिए मैंने आपको एक तरह से पे नहीं कर भी पे कर दिया, तो अब वो 1 मंथ के लिए पैसा ब्लॉक हुआ या नहीं, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सर्कुलेट होगा। आई विल यूज इट एंड आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइंग यू एंड आई एम श्योर दैट आई एम हैविंग मनी। मैंने अभी भी लोन लिया है, मुझे पता है मेरे अकाउंट में पैसा है, तो मैं बड़े आराम से चेक दे दूंगा। और मान लो 1,00,000 रुपीज़ आई हैव टेकन लोन, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 50,000 का मैं लोगों को जो पैसे मांगते हैं, द बोरोवर्स सॉरी द क्रेडिटर्स हु आर demanding money from me, I will issue check of 50,000 and the remaining 50,000 I will use for my operations of business. But the 50,000 you will take after 1 month. These 50 are also available for me. In contingency I can use that 50. तो अब देखिए कितना सर्कुलेशन हुआ। पैसा किसी और का था, डिपॉजिटर का, लोन के रूप में मुझे मिला और मैंने चेक इशू दे दिया, सब सेट है। डिपॉजिटर इसलिए नहीं बोलेगा, बैंक के पास उसकी एंट्री है, मुझे लोन मिल गया, मुझे आपको चेक देने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास पैसा है। आपको दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 1 मंथ बाद पैसे आ जाएंगे, चेक दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। यदि बैंक मुझे लोन नहीं देती तो मैं आपको चेक नहीं देता। अब मैंने आपको 1 मंथ का चेक दे दिया, तो आप मान के चलिए कि आप है ना, आप इसके बेसिस पर आप भी किसी और से कोई डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिजनेस डील या कोई भी डील कर सकते हैं कि 1 मंथ बाद हमारा पैसा आ जाएगा। तो बताइए, आपने कोई टास्क ही हाथ में लिया है या कोई काम करवाया है, उसका पेमेंट 1 मंथ बाद होना है, तो आप उस काम को करवा देंगे और उसके लिए एडवांस थोड़ा बहुत पैसा देना है तो आप दे देंगे। मान लो आपका घर का कोई कंस्ट्रक्शन ही करवाना है 10-20 हज़ार का, आपको पता है कि 1 मंथ बाद पैसा आ जाएगा, तो अब आपसे कोई, जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, उसको 5,000 रुपये एडवांस देने हैं, तो आप अपनी पॉकेट से दे देंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरा पैसा आने वाला है। बताइए वो मनी कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रही है। इन बैंकिंग सिस्टम मनी इज सर्कुलेटेड इन दिस वे। यस, ये 4th पॉइंट था ना। 5th लिखो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू अभी आज ही रीड किया, डिमांड डिपॉजिट किसके इक्वल होगा, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन टेबल से बताया था, लेकिन केवल समझाने से कुछ नहीं होता है, जो थ्योरी टर्मिनोलॉजी है वो भी अपने को आनी चाहिए कि डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, तो प्राइमरी डिपॉजिट में कौन सा आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट, द पब्लिक इज डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक। एंड सेकेंडरी डिपॉजिट में आ जाएगा क्रेडिट एंट्री, जो बैंक क्या करती है, लोन देती है ना, लोन देती है तो कैश नहीं देती है, वो तो क्रेडिट एंट्री आ जाएगी। तो इसमें तो क्या आ जाएगा, कैश डिपॉजिट बाय पब्लिक, है ना, और इसमें आ जाएगा क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री बाय बैंक टू बोरोवर इन देयर लोन अकाउंट।
I think time is over. We will have to stop the class, and the remaining point related to credit creation we will discuss in our next class. Have a nice day. Thank you very much to all.